ساتھ نہیں کمپنی میں کرنا تھا جوائنٹ وینچر، لیکن آج کل گورنمنٹ ان کے ساتھ ذرا بہت اٹس ویری سسپیشس اینڈ ڈاجی، تو اس لیے بھی پولڈ آؤٹ. میں تیرے کو صرف ایک بات بولتا ہوں، ابھی لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی ضرورت ہے. اگر شیراز کا قتل ہوتا ہے تو فوراً الزام شاہ نواز پر لگے گا. میں آپ لوگوں کی لڑائی میں اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتی. دیکھیے اب تو یہ مجبوری ہے. مگر ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم اعلان کر دیں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے منا، اپنے اس ڈرامے کا اینڈ مانگتا. جلدی خلص. کوئی نہ کہیں کا بہن کو کچھ دینے کے بجائے اس سے مانگ رہا ہے. ہمارا نہ دے، جب تک میرے کانوں میں یہ زیور ہے نا یہ نہیں جائے گا. پکڑ پکڑ، لے لے. میں ابھی بابا صاحب سے بات کرتی ہوں. آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیے گا. ہم دبئی چل رہے ہیں. ہلو، بابا صاحب سے بات کرنی ہے. سچ پوچھے تو یہ بات میں خود آپ سے کرنا چاہتا تھا بھابھی. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آمنہ اور احمد نواز ہی کا ہے، اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ اگر کوئی کچھ نہ کرے تب بھی نسلیں کھا سکتی ہیں. کوئی کچھ کیوں نہ کرے بھائی جی، شیراز کیوں کسی کا احسان اٹھائے گا؟ انشاءاللہ محنت کرے گا اور اپنی محنت کے بل پہ ترقی کرے گا. جی انکل، مجھے جو بھی کام آتا ہے میں وہ کروں گا. بابا یہ آپ کا ترکہ ہے، آپ ہی لوگوں کو سنبھالنا ہے. زینت بہن، آپ بھی ہمارے ساتھ دبئی چلیں، ہم سب مل کر ساتھ رہیں گے. جہاں میرا شیراز رہے گا وہیں میں بھی رہوں گی. اچھی بات یہ ہے کہ احمد نواز ہوٹل بزنس میں جانا چاہتا ہے. وہ یورپ، امریکہ اور ساحلی جزیروں پر ہوٹل کھولنا چاہتا ہے. ہاں بیٹا، بس آپ اس میں شامل ہو جاؤ. نوکریوں میں کیا رکھا ہے؟ رشوت لو تب برے، نہ لو تب برے. تنخواہ سے کہاں گزارا ہوتا ہے؟ یہ جو گھر چل رہا ہے اس کے شہید باپ کی بدولت ہی ہے. سب کچھ انہی کا ہے. بات یہ ہے بھابھی کہ جتنا بڑا درخت ہوتا ہے تو اس کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں. اسی طرح جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اتنی بڑی پرابلمس بھی ہیں. ہمیں شیراز جیسے پڑھے لکھے افسر کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. آمنہ کی ساری پراپرٹی بھی تو اسی کی ہے، جب چاہے لے لے. پراپرٹی کا کیا کرنا، بس اللہ میرے بچے کی زندگی محفوظ بنا دے. بیٹا اب جب بھی تم باہر جانا گارڈز کو ساتھ لے کر جانا. اور ہاں، میں نے دبئی میں تم لوگوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے. لیکن انکل یہ سب ایک ٹرائل کے طور پر ہوگا. فی الحال میں 2 سال کی چھٹی لے لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بابا صاحب یہ سب کچھ جلدی ہو جانا چاہیے. بس بیٹا یہی کوئی ایک آدھ ہفتے میں. ایسا کرو تم لوگ اپنا پاسپورٹ وغیرہ تیار رکھو. ہاں بیٹا، اتنے دن گھر سے باہر مت نکلنا. آنٹی ایک آدھ دفعہ تو آفس جانا ہی پڑے گا. گارڈز کے ساتھ. ارے بابا تیرے دینے پہ تو چائے بڑی کمال ہے. سنو سب لوگ، میں جینٹل مین بن گیا ہوں، باپو بن گیا ہوں. سلام مارو مجھے. ہاں بابا، ہاں سلام مارو بھی سارے اس کو. فرید خان ایڈی کانگ لاٹ صاحب بن گیا ہے. ایسے ہی نہیں سمجھو میرے کو. یہ دیکھو، یہ سونا ہے، اس سے بہت کچھ آتا ہے. چرایا ہے بہن کا؟ چرایا مرایا نہیں ہے، ابا نے خود مجھ کو دیا ہے. اب میں اسے بیچ کے
एक तो लूंगा गर्म सूट। अरे चरिया, ओए गर्मियों में गर्म सूट पहनेगा? शाबाश है फरीद, शाबाश। तू तो पक्का पक्का बाबू बन गया है। क्या टाइम हुआ तेरी घड़ी में? टाइम बड़ा नाजुक है। टाइम नहीं है हमारे पास, हम बड़ा आदमी हूँ, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। अरे फरीद, ये मुंदे मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। कितने पैसे देगा? अरे मैं तुझको 300-400 रुपए दूंगा। अब हाँ, पुराना सोना है, सस्ता बिकता है। ना ना, तू झूठ बोलता है। ये तो बड़ा कीमती सोना है। इसको बेच के मैं सूट लूंगा, टाई लूंगा, अरे बाबा नए जूते लूंगा, बूट लूंगा, सोने की जंजीरी भी आएगी, और वो शीशी वाला फुंगारा, वो जिससे खुशबू लगती है, वो लूंगा। अरे ये तो एकदम पागल हो गया है। पागल होगा तेरा बाप। बाप के ऊपर जाता है, इसने मुझे पागल क्यों बोला? अरे बालका, अरे प्यार की कर, दफा कर, इसके मुंह न लग। ये तो एकदम चरिया हो गया है। अरे होश कर फरीद, जा यहाँ से। वैसे भी अब मेरी ऊंची सोसाइटी है, मैं जेंट्री का आदमी हूँ, गैलरी में बैठता हूँ। ये लोग तो नीचे बैठने वाले लोग हैं, थर्ड क्लास वाले आदमी। मैं पार्लर का आदमी हूँ। मैं अभी जाऊंगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठूंगा, बड़े बड़े ऑर्डर दूंगा। वो क्या कहते हैं उसको, चाइनीज खाऊंगा, सी फूड खाऊंगा, पालक गोश्त खाऊंगा। तो मैं ऐसे इधर ही पड़े रहा। मेरी बचपन की एक याद है। कैसी याद? मैंने शायद आपको बताया था, मेरी एक स्कूल में एक टीचर होती थी। उसे मैं हमेशा देखता रहता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दफा मैंने उन्हें बता दिया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, मुझे ये कभी आइडिया नहीं हुआ कि मुझे अच्छी क्यों लगती है। पर एक तस्वीर है जो बहुत अरसे से मेरे ख्वाब में आती रही, अभी भी आती है, सरसराते हुए विजन में। कैसी है वो तस्वीर? आपसे बहुत मिलती है। तो और कोई मतलब नहीं है। और अगर इसका मतलब हो भी तो क्या? एक अननोन सा ड्रीम है, अनडिस्कवर्ड, जो मेरे साथ साथ चलता रहता है। ये अनएक्सप्लोर्ड ड्रीम्स जो होते हैं ना, इंसान को आगे से आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ये बात मैं आज तक नहीं समझ सका कि औरत के कितने डायमेंशन हैं, कितनी डेप्थ होती है उसकी आंखों में, उसके दिमाग में, उसकी बातों में, उसकी सोच में। औरत अपने सब्सटेंस में अच्छी लगती है। मुझे आप इसीलिए अच्छी लगती हैं, तो आपका एक पर्सोना है, एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत। ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अहमद। न जाने क्यों मर्द समझते कि सिर्फ हुकूमत का उनको हक है जीतने का, बिजनेस करने का। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि बिजनेस एम्पायर पे औरत भी राज कर सकती है। मुझे आपसे मिलकर ये अंदाजा हुआ कि औरतें बिजनेस को काफी क्लियर कर देती हैं, अपनी ईमानदारी और वैल्यूज से उसे एक सेहतमंद कल्चर देती है। अब हम साथ काम करेंगे ना तो आपको और भी पहलू नजर आएंगे। इस वक्त हमारी कंपटीशन सिर्फ पड़ोसी मुल्क के इन्वेस्टर्स से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। आई थिंक विजन और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज दुनिया ड्रीम मर्चेंट्स के आइडियाज की दुनिया है, और ड्रीम तो आपके पास है। ड्रीम मेरे सामने है। अगर मैं और आप इस तरह साथ रहे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं।
क्या कहती है भाई? क्यों कुफ्र बकती है? ये पीर झंडा किसी का पैसा नहीं खाता, किसी का कुछ नहीं खाता, खाली जिन को काबू में करता है। और जिन कितना खतरनाक है, किसी कब्जा ग्रुप का जिन है वो, उसने कब्जा करके रखा हुआ है। पीर साईं, मैंने अब तक 3 मुर्गे खिला दिए हैं आपको, लेकिन जिन ने अभी तक मेरी बच्ची से कब्जा नहीं छोड़ा। ए माई, ये जिन बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक जिन है भाई। तारीख पे तारीख मेरे को देता चला आ रहा है। ये अपनी बिरादरी का भोलू पहलवान है, बड़ा बहादुर है। 3 मुर्गे खा लिए, फेल कर दिए 3 मुर्गे। अब चौथा मुर्गा खिलाऊंगा तो उसको काबू पाऊंगा, ताकि वो जिन मेरे कब्जे में आए। जा भाई जा, फार्मी मुर्गी मत लाना, देसी मुर्गी ले आना। पीर साईं, मैं गरीब औरत हूँ, आप जिनसे कहें मुझे माफी दे दें। ओ माई कर्मा वाली, तो जिन माफी देने के लिए नजराना लेता है, तब माफ करता है। जा जा जा, तेरा काम हो जाएगा। चल जा जा बाबू जा। हक अल्लाह हु अल्लाह, हक अल्लाह हु अल्लाह। बाबा सही झंडा पीर, सही रात को हमने आपके लिए भोजन का बंदोबस्त किया है। ओ भाई लंबू, ओ निक्कू, ओ जिंदा नाच गाना भी है कि सही कुकड़ी पे ही गुजारा करवाओगे हैं? पीर झंडा साईं, अब तो आप और हम पेटी भाई हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। वो सही बड़ा माल आएगा, बड़ा माल आएगा। बस बच्चा पैदा होने की देर है, फिर हम अहमद नवाज खां से बड़ा माल मारेंगे। हाँ ठीक है, दम पुख्त बाबा, दम पुख्त। फिर आज चलेगा क्या? अरे सही बड़ा कुछ चलेगा आज है। देसी कुकड़ चलेंगे, बिरयानी चलेगी, कोरमा चलेगा है, और बकरे के गोश्त की कढ़ाई भी होगी। सही हाँ, और वो सही वो दम मारो दम भी है कि नहीं बाबा? अरे वाह 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 मुर्शिद सही, रगड़े पे रगड़ा चलेगा, दौर पे दौर चलेगा है, और सावी के प्याले चलेंगे। मुर्शिद कैम, डंडा दौरी कैम, सदा झंडे वाला सिंह जी है। अरे झंडा सही, बस आपको एक बार हमारे साथ चलना होगा। जो ही बच्चा पैदा होगा, उससे पहले आपको उस इलाके में एक बात फैलानी है। ये बाबा धूनी लगा देंगे, धूम मचा देंगे। बस दम मस्त, दम मस्त बाबा, दम मस्त, दम मस्त बाबा, दम मस्त, दम मस्त। अच्छा बाबा, अभी तुम लोग उठो जाओ, सही धंधे का टाइम है ना। हाजिर सही हाजिर, हम जाते हैं। ये झंडे वाला पीर जी, ये डंडा दौरी। जिंदा मेरी बात सुन, ये खालका मालका अच्छे लोग नहीं है, तू इनकी बातों में ना आना। और जाके अहमद नवाज को बता दे कि आयशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं 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 नहीं, उनको पता चलेगा तो मेरी बेटी को मरवा देंगे या फिर गांव से बाहर निकलवा देंगे। हाँ ये बात तो है, सोच ले, जब बच्चा पैदा होगा तो फिर वो लोग ये बात मान लेंगे। एक दफा बच्चा हो गया ना तो सारा इलाका बोलेगा, सब गवाह है। अम्मा, अब इस बहस से क्या फायदा, क्या जरूरत है इस बहस की? अरे बच्चा मेरा है, मैं उसे पैदा करूंगी। अगर किसी ने उसको उसका हक ना दिया तो मैं पाल लूंगी उसे, पेट भर लूंगी मैं उसका। एक सहारा तो होगा, और फिर हक लेना हमको आता है। अहमद नवाज ऐसा आदमी नहीं है, उसे किसी शय की परवाह नहीं है। वो तो जागीर देता है भीख में, और फिर ये तो उसका अपना खून है, शक्ल देखेगा तो पहचान लेगा। बेटी तो ज्यादा परेशान ना हो, ना दिल पे बोझ ले ना दिमाग पे। ये बात अब कोई ना करे, इसका जिक्र कोई किसी से ना करे। मैं इस घर में कैद हो गई हूँ सिर्फ इस बच्चे के लिए। अब ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, तू इसे गर्म दूध में घी डाल के पिला दे, मैं चलती हूँ। हाँ, अब तो मेरे पास जो कुछ भी है वो इसी का है।
دیکھو مسا، اگر تمہارے پاس قادر کے خلاف کوئی رپورٹ ہے یا کوئی ثبوت ہے تو وہ تمہاری عزت کے لیے کام آ سکتا ہے. آصف، میں دیکھا نا آپ کو وہ قادر کے خلاف ثبوت. میرے پاس بہت ثبوت موجود ہے سیٹ. وہ کیا ہے کہ پہلے میں یہ سپاری اٹھاتا تھا. ابھی میں یہ لفڑے میں نہیں پڑتا ہے. ابھی بدلہ لینے کا. ابھی میں بتائے گا سیٹ قادر کو کہ شیر بوڑھا ہو جائے تو پنجہ مار کر بھی ہلاک کر سکتا ہے. دیکھ بابا، ابھی تک تو ہم چپ رہا ہے، مگر اب ہم چپ نہیں رہے گا. ابھی ہمیں کچھ کرنا ہے، مگر ریاستوں کے مطابق قانون کا کام کرنا ہے. اب یہاں کے قانون کی جیت دیکھنا ہمارا حق ہے، اور وار کرنے کی باری اب ہماری ہے. ہاں سیٹ، میں خلاص کرے گا. میں سیٹ موسیٰ کریم بامبے والا، وہ سیٹ قادر کو میں خلاص کرے گا. اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ثبوت لے کر آؤ. ابھی جاتا ہے سیٹ، میں جاتا ہے. میں سلام باز ہے. بس نہیں، آپ کراچی سے ہوا ہے، کیا حالات ہے وہاں کے؟ ایک خبر سنانی ہے تمہیں. اس واقعے کے بعد شیراز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کرے گا. او باز ہے، یہ تو بہت اچھی خبر ہے. ہمارے بزنس کو اور طاقت ملے گی. ویسے بھی جتنے کامیاب بزنس ہیں وہ فیملی بزنس ہی ہوتے ہیں. بابا، بڑے عقل کی بات کی ہے چھوٹے سائیں کی. ہم شاہ نواز سائیں سب یہیں شفٹ ہو جاتے ہیں. ایک کام کرو بابا، تم جلدی سے آفس بنواؤ، اس کے لیے گاڑی خریدو، ولا خریدو، کام کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے باز ہے، سب ہو جائے گا. ویسے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اور شیراز امریکہ چلے جاتے ہیں. وہاں کے لیڈنگ ہوٹل سے بات چیت کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھا ہے، جاؤ. اس کو بھی بزنس کا تجربہ ہونا چاہیے. جاؤ. ٹھیک ہے باز ہے. ویسے مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، ابھی مجھے تیاری کرنی ہے. میں چلتا ہوں. بابا، کوئی بڑا ضروری اپوائنٹمنٹ ہے؟ ہاں غنی چاچا، بڑا ضروری ہے. تو پھر گڈ لک. اوکے باز ہے. گھڑی نہ دیکھیں. آپ یہ بتائیں کہ آج کا ہاراسکوپ دیکھا آپ نے؟ آپ ہاراسکوپ میں بلیو کرتے ہیں؟ آج تو کم از کم کروں گا. کیوں، آج کیا اسپیشل ہے؟ ایک خواب سے ملیں گے اور دوسرے خواب میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں داخل ہوں گے، نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک تصور سے دوسرے تصور میں داخل ہونے کی بات ہوگی. بات تو اپنے اپنے خوابوں اور خواہشوں کی ہوتی ہے، نہیں؟ میری خواہش کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی پریزنس کی بات ہے، آپ کی موجودگی کی بات ہے. Is that a compliment? Yes, I mean it. Thank you. پتہ ہے احمد، ہماری اتنی ڈرائی اور کیلکولیٹڈ لائف ہوتی ہے نا کہ پرسنل لائف کا وقت ہی نہیں ملتا. مجھے لگتا ہے کہ بزنس تو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ نو اگر پرسنل لائف اور بزنس اکٹھے چل سکتے ہیں. کیوں نہیں چل سکتے؟ کیا مطلب ہے ایک رومانٹک آدمی اچھا بزنس مین نہیں ہوتا؟ Never. Are you serious? مطلب business is so ruthless. Businessmen have to be competitive and cutthroat. ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں مل کے اس کو خوشگوار بنائیں گے. یہ تو ہو گیا.
अच्छा बाय द वे इंटरनेशनल फाइनेंस डिसिप्लिन की मीटिंग इस दफा दुबई में हो रही है, आप अटेंड कर रहे हो? बिल्कुल जाऊंगा। इस बार तो मुझे अमीर मुल्कों के एडवर्टाइजर्स को खरी सुनानी है। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि यूएई से लीडरशिप उभरे और हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को डिटरमिन करें। ग्रेट, कुछ यही सोच मेरी भी है। नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप जहन पे जोर तो दें, शायद इनमें से। मैं जानता हूं, इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मुझ पर हमला किया। आप सिर्फ इशारा करें, इनसे जुर्म बनवाना मेरा काम है। ये सब के सब मानेंगे कि गोली इन्होंने ही चलाई। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी सजा से अदालत की सजा बहुत बेहतर है। हकीकत यह है कि ये वो लोग नहीं है, और क्या जरूरी है कि जो गरीब शक्ल से मुजरिम लगता हो वो असल में भी मुजरिम ही है। आप मेरी बात लिख लें कि ये काम किसी व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले का काम है, और आइंदा मुझे नहीं बुलाइएगा क्योंकि मैं इन्हें नहीं पहचानता। इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मीटिंग में जा रही हैं आप? बट ऑफ कोर्स मुझे लगा था कि मैं आपको कहीं मिलूंगी। मेरा ख्याल था कि हम दोनों साथ चलते, रास्ते में नोट्स एक्सचेंज करते चलते, यहाँ से वहां तक की ड्राइव एटलीस्ट 40 मिनट्स की है। नोट्स एक्सचेंज करते हुए? नादर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझसे आपको मशवरा क्यों चाहिए होगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं? ये तौज है, नाराजगी है, या फिर हमारी तौहीन? The balls in your court. You decide. मैं ये बॉल नहीं खेलूंगा, चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़ जाए। तो फिर बेहतर होगा कि हम कॉन्फ्रेंस में मिलें। आपने किसी ने जादू किया है, और जादू सिर्फ अहमद नवाज खान के पास है। मैं राइट? अगर ये जादू है तो इस जादू को दाद देनी चाहिए, नहीं? नादर दाद देंगे, दिल खोल के दाद देंगे। वाओ, लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद से We be waiting. Sure. अहमद नवाज, क्या आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो? जी बात है। मेरा गर्म खून है, जरा टेम्परेचर पर काबू रखना। अभी हमें बहुत कुछ करना है। वो ठीक है बात है, लेकिन सच तो हमें बोलना होगा ना। बाबा, बिजनेस में सच वो होता है जो सबसे ऊपर होता है और जिसका हाथ सब पर होता है। और अब हमारा हाथ सबके ऊपर होना चाहिए। हमें खुद अपना सच बनाना होगा। सच बनता नहीं है बाबा, सच होता है। उसे आप दरियाफ्त करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। बात है, आपके होते हुए हम बहुत ताकतवर हैं। हम सच को साबित करेंगे। और आज का सच ये है कि मगरबी मुल्कों और अमेरिका की करेंसी की ताकत हम गरीब मुल्कों को और भी ज्यादा गरीब बना देती है। अपने सच को ताकतवर बनाओ नवाज। मैं पूरी कोशिश करूंगा वैसे। देखो, ये जो यहूदी लॉबी के कारिंदे हैं, यही हैं जिन्होंने मुसलमान बैंक बीसीसीआई को बंद कराया। अरब उनका टारगेट, अरब वर्ल्ड उनसे होशियार है। ये बात है, अब अरब वर्ल्ड का सूरज तुलू होगा, यही हमें उनको बताना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, तुम जाओ। गुड लक। थैंक यू बाबा। थैंक यू। कैप्टन शिराज, तुम जैसे ऑफिसर को
बिलीव करने को दिल नहीं चाहता। सर मैं सिर्फ 2 साल की छुट्टी चाह रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम हमें वापस ज्वाइन करोगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, अभी तो बहुत सर्विस बाकी है। जिस बिजनेस कंसर्न में तुम जा रहे हो वो तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम हमारे पास वापस आओगे ना। सर ये बात तो है सर, मगर चैलेंजेस उधर भी बहुत हैं वैसे। बहरहाल हमसे अगर कोई कोताही हुई हो तो। नहीं सर, सर आई हैव ऑलवेज लव्ड माय प्रोफेशन। आई विश यू गुड लक कैप्टन शिराज। थैंक यू सर। I think that was really effective. Thank you. मैं देखा ये गौरव किस तरह नई नई थ्योरी पेश करते हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर हमने सेकंड सेशन में इनको इस तरह से घेर लिया। सब जो हमारी नई नस्ल है जो भी बिजनेस करेगी उसे नए इकोनॉमिक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। Definitely, I totally agree with you. Coffee? ब्लैक। Definitely. ब्लैक। You know that point that you brought up about parallel financial cultures, that is very valid. अमीर मुल्कों का और गरीब मुल्कों का दोनों के अपने अपने मसाइल हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को यूज कर रहे हैं अपनी सुपरमार्केट्स के लिए, उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ताना देते हैं चाइल्ड लेबर का और हमसे डिमांड करते हैं कि हम अपने माहौल को दुरुस्त बनाएं। हम गरीब मुल्कों से सस्ते दामों माल खरीदते हैं। डबल पॉलिसी में तो और क्या। तो और क्या करते हैं कि इस्लामिक बैंक बीसीसीआई की तरह को बंद कर देते हैं। दुनिया की कौन से हिस्से में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है? ये सदियों पुराना जो गुलामी का तस्वर था ना, अभी तक उनसे नहीं छूटा। ये चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ना बस अभी तक गुलाम बनाकर रखें। सर हम छोड़ेंगे नहीं, इस पॉइंट को जरूर रेस करेंगे, छोड़ना नहीं इनको। मस्त है। I'm so geared up. गनी बाबा अपना अहमद नवाज तो कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है, उधर शिराज की छुट्टी हो गई है। उनके वीजे वगैरह का कुछ करो बाबा और किसी फ्लाइट से उनको यहां बुलवाओ। चलो बस बाबा, जो मिला हमने देखा है वो कैसा है? बाबा बंगला बहुत अच्छा है, उसमें कुछ सामान वगैरह तो डलवाओ। अरे हो जाएगा ना सही, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सब कुछ खामोशी से होना चाहिए बाबा, क्योंकि दुश्मन अभी भी ताक में बैठा हुआ है। देखो शाहनवाज बाबा, जब वो निकलते हैं तो गार्ड्स होते हैं साथ, वैसे अल्लाह मालिक है। हाँ बाबा, वो तो अल्लाह ही मालिक है। तुम कागज तो तैयार कराओ। बस ये वाली करके मैं इधर से पहले वो टेबल कर लो। अम्मी वहां से वीजे बन के आ गए हैं और टिकट्स वगैरह भी बन गई हैं। मैं जरा बैंक से होके आता हूँ क्योंकि कुछ अकाउंट्स चेक करने हैं और कुछ कैश भी लेना है। बेटा एहतियात से जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गार्ड्स है ना मेरे साथ अम्मी, और फिर ये जरूरी भी है। आमना जरा माँ की तरफ गई हुई है, शाम तक आएगी। और फ्लाइट कब की है? फ्लाइट कल शाम की है। हेलो हेलो,
हेलो बोल बच्ची, मैं बिछड़ गई माँ, मैं बिछड़ गई। अरे किसने फोन किया बता मुझे। माँ, शिराज कत्ल हो गया। क्या बता रही है तू? मुझे रो लेने दे, मुझे बैन करने दे आंटी, ये मेरा हक है। मुझसे मेरा हक बच्ची ने, मेरा तो घर ही उजड़ गया, मेरा तो नसीब उजड़ गया। तुम लोगों ने मारा मेरी बच्ची को, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारा बाप जिम्मेदार है। ये झूठ है, सबसे एक कातिल ने किया है। तुम लोगों की दुश्मनी में मेरा बच्चा मर गया। मुझे खत्म कर लेने दो उसका, मुझे खत्म कर लेने दो। चले जाओ यहाँ से। आंटी मैं इसकी बेवा हूँ, शहीद की बेवा हूँ मैं। मेरा हक है कि मेरा हक मत मुझसे छीने आंटी। आपने तो तंबा सजा दिया, अब मुझे मेरा हक ही वो छीन रही है। मत करे ऐसे, मुझे एक बार शिराज की शक्ल देख लेने दे। प्लीज आंटी, होश से काम लो, अपने पराई को पहचान लो। अब पहचाना है, अपनों ने मारा है मेरे बच्चे को। न ये शादी होती, न दुश्मनी होती, अपनों ने मारा है। अभी सारे गिले कर लीजिएगा, आपने जो कहना है मुझे कह लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे शिराज की शक्ल देख लेने दे। गोद खाली हो गई मेरी, गोद खाली हो गई। शहीद बाप से सब्र ना हुआ, बेटे को बुला लिया, अपने पास बुला लिया। ये सब अल्लाह की रज़ा है बहन, सब्र से काम लो। तो मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे सब्र तुम्हें चाहिए, तुम रख लो। कलेजा ठंडा कर लो अपना, मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखने दूंगी। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें निकाले, इन्हें ले जाए, मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगी। आप आइए, चले जाओ यहाँ से। दीदी आप आइए, प्लीज आप आइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिराज को मार दिया? क्या बाबा शिराज को मार दिया? लोगों ने शिराज को मार दिया? पुश्ते टूट गए हैं बाबा, बात उड़ गए हैं, तूफान उठा है, मजदूर गिर गए हैं। जंग होगी, जंग। मैं बिल्कुल टूट गया हूं बाबा, बिल्कुल टूट गया। और जब पहाड़ टूटता है तो बड़ा शोर उठता है, और बहुत शोर उठेगा। तुझे बैठी है कदम में, अब मैं उस पर मत कर फूकूंगा। बेटा है मैं तमाश, इधर आओ बेटा। मुझे कसम है अपने बेटे की कदम, मैं कादिर चौकी को बर्बाद करके छोड़ दूंगा। और जो अपने खून से हम के चाप चलाता रहा है, मैं दूसरे के खून से क्या करूंगा उसका? मैं करता रहेगा। मुझे भी कसम है आपके कौन की, मैं भी अपनी डिक्शनरी से शिकस्त का लफ्ज निकाल दूंगा। सिर्फ जीतना है हमको, सिर्फ जीतना है। हौसले का वक्त है, हौसले का। दुश्मन जो कर सकता था वो कर चुका है।
अब जो करना है हमें करना है, सही हमें करना है।